In this video, we're going to talk about the sex-linked inheritance, which is one of the most important questions asked 9 times in the past 23 years and almost being a fixed question. This chapter is a bit complex. Not complex actually, a bit confusing. It's easy but a bit confusing. So in this topic, I'm going to talk in Hindi so you can understand better. So सबसे पहले human being, there are 2 types of chromosomes in human being. We know this. The 2 types of chromosomes in human beings, पहला होता है autosomes, okay, and दूसरा होता है sex chromosomes. Now autosomes, they are responsible for the control of the non-sexual characters. मतलब sexual character के अलावा जितने भी characters like height, color and all these, they are controlled by autosomes. Sex chromosomes का काम होता है sex linked characters को control करना, like male, female and the position of the sexual organs, वो सब sex chromosomes वो define करता है. We know that in human beings there are 23 pairs of chromosomes, okay. So among this 23 pairs, 22 pairs are the autosomes and 1 pair is the sex chromosomes. अब उसमें भी अगर ये फीमेल है तो X और X होगा sex chromosome, और अगर ये मेल है तो sex chromosome होगा X and Y. Now basically ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, okay, on the sex chromosomes. But actually sex linked inheritance होता क्या है? So see, in the sex chromosomes there are genes. Obviously ये chromosome है तो gene होगा इसमें, पर now see, ये जो X chromosome है, suppose X chromosome में कुछ जीन्स मौजूद है, लेकिन ये जीन्स जो है सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अलावा दूसरे भी जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. मतलब कि ये एक्स क्रोमोसोम में सेक्सुअल कैरेक्टर्स के तो जीन्स होते ही हैं, पर इसके अलावा और भी जीन्स होते हैं, वो नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर्स के जीन्स होते हैं. और ये एग्जांपल लाइक इट विल बी कलर ब्लाइंडनेस का जीन होता है, कुछ हेमोफीलिया का जीन होता है, कुछ स्किन कैंसर का जीन होता है. सो विल लर्न अबाउट इट इन डिटेल. पहले तो इसमें सेक्सुअल कैरेक्टर्स के तो जीन होंगे, बट नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर्स के भी जीन होंगे. ओके, नाउ वी कैन कॉल दैट नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर एज सोमैटिक कैरेक्टर. ओके, सो नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर के जो जीन है, दे पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. और ये जो नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर्स, द सोमैटिक कैरेक्टर्स जो इनके इनहेरिटेंस को हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. It means that these somatic characters which are linked with the sex chromosomes, they are known as sex linked characters, and their inheritance from one generation to the other is known as sex linked inheritance. So summarizingly, sex linked inheritance basically क्या है? हाँ, वो sex chromosome के बारे में, पर it is not about the sex genes, it's about the non-sexual genes, non-sexual characters which are present on the sex chromosomes. So this is about the definition of the sex linked inheritance. So simple में we can understand those non-sexual characters which are present on the X chromosome, on the sex chromosome, their inheritance is known as sex linked inheritance. And one information, Y जो chromosome है, Y में ज़्यादा genes होते ही नहीं है. Y chromosome में सिर्फ sexual characters के genes होते हैं, वो भी बहुत कम, बाकी के genes Y में होते ही नहीं है. So if there is a male, then male के लिए X में genes होंगे, Y में genes नहीं होंगे. सोमैटिक कैरेक्टर्स के, सेक्सुअल कैरेक्टर्स के दोनों में होंगे, लेकिन जो सोमैटिक कैरेक्टर्स, नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वो सिर्फ एक्स में होगा, वाई में नहीं होगा इन मेल. तो स्ट्रक्चर वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो एक्स और वाई जो है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, यानी कि दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. सपोज दिस इज एक्स क्रोमोसोम, ओके, तो वाई क्रोमोसोम में जो है वो स्लाइटली लाइक इन्वर्टेड जे टाइप्स होता है, ऐसा. So this is X chromosome, this is Y chromosome. Now see, basically we are seeing that some portion is same and some portion is different. ये जो same portion है X और Y के बीच में, इसको बोलते हैं homologous segment, okay, और इसको बोलते हैं non homologous segment. अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ? बेसिकली जो हम लोग को बोला जाता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में लिखने के लिए, ये सब चीज़ें लिखनी नहीं है, पर ये समझना पड़ेगा आगे जाके सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस समझने के लिए. सो इसी बेसिस पे कहाँ पे ये लोकेटेड है सोमैटिक कैरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ दिस नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर्स
there are three types of sex-linked inheritances. So first of all we have the X-linked traits. Trait it means characters. Okay, इसको हम लोग डाईएंड्रिक सेक्स लिंक्ड भी बोलते हैं, डाईएंड्रिक सेक्स लिंक्ड. हमें ये समझना पड़ेगा इसमें क्या होता है. एक्स लिंक्ड ट्रेट्स तो बेसिकली नाम से क्लियर है कि एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा सोमैटिक कैरेक्टर्स पर, एक्स क्रोमोसोम पे भी कहाँ. सो अगर ये सोमैटिक कैरेक्टर्स दे आर प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलोगस सेगमेंट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, इट इज़ नोन एज द एक्स लिंक्ड ट्रेट्स. सो नॉन होमोलोगस सेगमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इट इज़ नोन एज एक्स लिंक्ड ट्रेट्स. मतलब इसको डाईएंड्रिक सेक्स लिंक्ड भी बोलते हैं. इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं हेमोफीलिया का जीन. हेमोफीलिया बेसिकली इट इज़ अ कंडीशन इन विच द ब्लड इट इज़ इनेबल टू क्लॉट इटसेल्फ. इसको रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज फाउंड इन द रॉयल फैमिली ऑफ क्वीन विक्टोरिया. अबाउट दिस विल डिस्कस लेटर ऑन. सो दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है आई कलर का जो जीन होता है. सो ये सब के जीन्स अगर प्रेजेंट होते हैं, ये सब के जो जीन्स है ये नॉन होमोलोगस सेगमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्स लिंक्ड ट्रेट्स. ओके, देन वी हैव वाई लिंक्ड ट्रेट्स. नाउ वाई लिंक्ड ट्रेट्स को बोलते हैं हम लोग होलोएंड्रिक और होलैंड्रिक सेक्स लिंक्ड. ओके, जैसे डाईएंड्रिक होलैंड्रिक सेक्स लिंक्ड. तो इसमें भी लगभग सेम है, नॉन होमोलोगस सेगमेंट पे होता है पर दे आर ऑन द वाई क्रोमोसोम. नॉन होमोलोगस सेगमेंट ऑफ द वाई क्रोमोसोम मतलब अगर इस सेगमेंट पे प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं वाई लिंक्ड ट्रेट्स. एंड लास्ट वी हैव द एक्स वाई लिंक्ड ट्रेट्स. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट सेक्स लिंक्ड. So if the somatic characters they are present on both the homologous segment of X and Y chromosome, मतलब इन दोनों पे present है X और Y के homologous segment पे, तो इसको बोलते हैं XY linked traits. So these are the three traits: X linked, Y linked and XY linked. अब हाँ एग्जाम्पल्स इसके Y linked के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं TDS यानी कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग रीजन, उसका जीन जो होता है वाई लिंक्ड हो सकता है. एंड दिस एक्स वाई लिंक्ड का एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस. ओके, कलर ब्लाइंडनेस विच इज ऑल्सो नोन एज मोनोक्रोमैटिया. एंड देन स्किन कैंसर इज ऑल्सो नोन एज द ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम. सो इन सब के जीन्स जो एक्स वाई के दोनों के ही होमोलोगस सेगमेंट पे हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हमेशा ही होता है, लेकिन हो भी सकता है. जिसको होता है उसको स्किन कैंसर हो सकता है, जिसको होता है कलर ब्लाइंडनेस उसके एक्स वाई क्रोमोसोम पे होमोलोगस सेगमेंट पे वो जीन्स प्रेजेंट हो सकता है. बट दिस इज नॉट, कलर ब्लाइंडनेस के भी 3 टाइप्स हो सकते हैं. दिस इज अबाउट कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली अबाउट दिस विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द टॉपिक. स्टिल जस्ट इन्फो कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है 3 टाइप का हो सकता है. हमारे जो आँख में जो रेटिना में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, कोन्स एंड रॉड सेल्स. कोन सेल्स कलर ब्लाइंडनेस मतलब वो कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स को देखता है. एंड कोन सेल्स में भी रेड, ब्लू एंड ग्रीन टाइप के कोन सेल्स होते हैं. RBG रेड कलर, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर. इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग बहुत सारे कलर्स बना सकते हैं. और हमारे जैसे कि टेलीविज़न में भी जो कलर्स आते हैं वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं. सो अगर ये रेड और ग्रीन का जो कलर ब्लाइंडनेस है ये अगर ये इसका जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है, और जो ब्लू का है उसका वाई क्रोमोसोम पे होता है. तो अगर रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है तो वो एक्स क्रोमोसोम के कारण होता है, ब्लू जो होता है वो वाई के कारण होता है. लेकिन अगर कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस है यानी RBG तीनों ही कलर नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब कि एक्स वाई क्रोमोसोम दोनों इन्वॉल्व है. एंड सो इट इज़ XY लिंक्ड ट्रेट क्योंकि एक्स और वाई दोनों पे ही प्रेजेंट होते हैं. सो अबाउट दिस विल लर्न फर्दर. अभी तो this was about the general knowledge of the genes and the chromosomes. Now we have a term called criss-cross inheritance, and then we'll move on to the topic what we need to write in the examination. Exam में पूछेगा the Drosophila का sex linked inheritance दिखाइए, red eyed white eyed के basis पे 100% वही पूछेगा. उसके अलावा कुछ question पूछ ही नहीं सकते इस chapter से, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं. पहले तो criss-cross inheritance क्या है वो जानते हैं. ओके, सो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के लिए सबसे पहले तो हम लोग को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा तब समझते. सपोज दिस इज़ अ फीमेल XX. तो फीमेल पे अगर कोई भी कैरेक्टर आता है, सपोज हम लोग कलर ब्लाइंडनेस का एग्जांपल लेते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए हम लोग डिनोट करते हैं C से. ठीक है, ये C विल डिनोट द कलर ब्लाइंडनेस. सो इफ़ फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस है
तो दोनों पे ही कलर ब्लाइंडनेस का जीन होना चाहिए, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन होना पड़ा। अगर एक पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है और दूसरे पे नहीं है तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि डोमिनेंट होना पड़ता है। ये सब जीन्स जो है, कलर ब्लाइंडनेस के जीन्स जो है, ये सब रिसेसिव जीन्स होते हैं। ओके, जीन्स का भी दो टाइप होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो जो जीन्स डोमिनेंट होते हैं वो अगर सिंगली प्रेजेंट होते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बोला था। लेकिन अगर कोई भी जीन रिसेसिव है तो उसको होमोजाइगस कंडीशन ही चाहिए, मतलब दोनों ही कंडीशन में होना पड़े तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, वरना डोमिनेंट वाला जो है उसके ऊपर डोमिनेंट वाला उसको सप्रेस कर देगा। सो कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है ये जान लीजिए, ये यूनिवर्सल है, ये एक रिसेसिव जीन होता है। ओके, सो मतलब कि जो नॉन कलर ब्लाइंडनेस का जीन है वो इसके ऊपर डोमिनेंट होता है। सो अगर किसी भी फीमेल में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम में कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो दूसरे में नहीं है, सो दिस विल बी डोमिनेंट ओवर इट, सो इट विल नॉट एक्सप्रेस द कलर ब्लाइंडनेस। ओके, पहले तो नॉर्मल कंडीशन ऐसा होता है फीमेल का, सो दिस इज नॉर्मल नो कलर ब्लाइंडनेस। ओके, बट एक में भी अगर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो इट विल नॉट एक्सप्रेस द कलर ब्लाइंडनेस, बट इट इज़ द कैरियर ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस। नाउ व्हाट इज मीन बाय कैरियर विल नो फर्दर। पहले तो दिस विल नॉट एक्सप्रेस करने के लिए दोनों ही जीन पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन, दोनों ही क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन होना पड़ा तभी वो एक्सप्रेस कर पाएगा। ओके, दिस इज अबाउट द फीमेल। मेल के केस में थोड़ा उल्टा है। मेल के केस में क्या होगा, एक्स वाई क्रोमोसोम दिस इज नॉर्मल, है ना, लेकिन अगर एक्स क्रोमोसोम पे ये जीन प्रेजेंट है, अब देखिए वाई पे प्रेजेंट होने का सवाल ही नहीं होता। एज आई सेड, वाई पे जो है ये सब सोमैटिक कैरेक्टर्स के, नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर्स के, कलर ब्लाइंडनेस तो एक नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर है ना, तो ये सब जीन्स जो है वाई पे प्रेजेंट होता ही नहीं है। वाई पे सिर्फ होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, सॉरी सेक्स जीन्स, तो वाई पे प्रेजेंट होने का सवाल ही नहीं है। सो अगर कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट है, एक्स पे भी प्रेजेंट है, सो इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, क्योंकि दूसरा एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, तो डोमिनेंट रिसेसिव का सवाल ही पैदा नहीं होता। डोमिनेंट रिसेसिव कब होगा, जब इसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट होगा इसके होमोलोगस जीन पे, इसका दूसरा जीन पे अगर इसका होमोलोगस कंडीशन, सॉरी इसका कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन प्रेजेंट होगा, मतलब इसका अल्टरनेटिंग जीन प्रेजेंट होगा, तभी वो एक्सप्रेस नहीं करेगा ना। अल्टरनेटिंग जीन विल बी डोमिनेंट ओवर अदर। यहाँ पे अल्टरनेटिंग जीन का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, यहाँ तो वाई क्रोमोसोम है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, तो अल्टरनेटिंग जीन, कॉन्ट्रास्टिंग जीन, इन सब का सवाल ही नहीं आता है। सो डायरेक्टली अगर एक पे भी ये प्रेजेंट हो तो इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। नाउ जो मैंने पहले वीडियो में हेमीजाइगस टर्म यूज़ किया था जेनेटिक्स के सबसे पहले वीडियो में, वो टर्म यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये देखिए, एक्स एंड एक्स इज प्रेजेंट, वी नो इट इज़ होमोजाइगस कंडीशन, दोनों पे ही कलर ब्लाइंडनेस का जीन भी है, सो इट इज़ होमोलोगस कंडीशन। ओके, यहाँ पे एक्स एक्स है लेकिन एक पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, एक पे नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन, एज ए सेड इन द फर्स्ट वीडियो। पर यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही जीन जो है इट इज़ डिटरमाइनिंग वेदर इट विल एक्सप्रेस और नॉट, सो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। और हेमीजाइगस के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था, तो उसका एग्जाम्पल ये है। सो हेमीजाइगस कंडीशन, दिस इज नोन एज हेमीजाइगस कंडीशन। सो अगर एक पे भी प्रेजेंट, सो इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। ओके, प्रेजेंट नहीं है तो एक्सप्रेस नहीं करेगा, अगर प्रेजेंट है तो ये एक्सप्रेस करेगा ही। सो इट इज़ दैट ये जो कलर ब्लाइंडनेस का जो है ये मेल में ज़्यादा होता है, क्योंकि मेल में इसका अल्टरनेटिंग प्रेजेंट ही नहीं है। एब्सेंस ऑफ इट्स कॉन्ट्रास्टिंग एलील ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, इट फेवर्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। सो ये कलर ब्लाइंडनेस जो है ये मेल में ज़्यादा होता है। ओके, सो ऑल द रेसेसिव कैरेक्टर्स, एक और रेसेसिव कैरेक्टर होता है वो है हेमीफीलिया। एज आई सेड हेमोफीलिया इट इज़ अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग। तो हेमोफीलिया का भी अगर हम लोग एग्जांपल लेते, सी के जगह एच लेते, तो वो भी सेम होगा। तो रेसेसिव और मतलब जितने भी रेसेसिव जीन्स हैं वो सब जो है मेल में ज़्यादा होगा, फीमेल में कम होगा, क्योंकि फीमेल में तो दोनों पे होना पड़ा एक्सप्रेस करने के लिए, वो बहुत ही रेयर केस है दोनों पे होना। एक पे होगा तो एक्सप्रेस नहीं करेगा, भले ही वो कैरी करेगा अगले जनरेशन में, लेकिन एक्सप्रेस होना मुश्किल है। सो एज ए सेड आई वाज अबाउट टू टेल यू अबाउट दिस एट द एंड ऑफ द वीडियो। ये भी एक टॉपिक है इस चैप्टर में, पर ये टॉपिक एग्जाम में पूछता नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि इससे हम लोग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस समझने में आसानी होगी। सो अब टू अंडरस्टैंड द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, एक और चीज़ बस हम लोग को समझना पड़ेगा, फीमेल और मेल में जो है वो क्रोमोसोम्स आते कैसे हैं एक्चुअली। वैसे तो ये पढ़ा हुआ टॉपिक है जूनियर क्लास में, फिर भी suppose this is a male, sorry female, and this is a male. Okay, we know XY will be male, XS will be female. So अगर X और X आता है, मतलब
सपोज इससे एक्स क्रोमोसोम और इससे एक्स क्रोमोसोम आता है, ये दोनों मीट करके बनता है तो एक फीमेल बनेगा. ओके, इफ़ द एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मेल एंड द एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फीमेल, मतलब फादर और मदर दोनों से एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो फीमेल बनेगा. वैसे ही अगर फादर से वाई क्रोमोसोम आता है और मदर से एक्स क्रोमोसोम आता है, और जब ये कंबाइन करते हैं, जब इसका क्रॉस होता है तो एक्स वाई करके मेल बनता है. So we are seeing one thing, that the daughter is getting her X chromosome from her father and the mother as well, but the son is getting his X chromosome only from the mother, not from his father. Okay, so basically ये एक simple knowledge है. अब इसके basis पे हम लोग criss cross inheritance समझेंगे. So see, अब talking about combining both these topics. So criss cross inheritance basically ये इसी चीज़ के ऊपर है, the expression of the characters, the somatic characters. We are dealing about the somatic characters, we are dealing about sex linked inheritance. So ये तो include होना ही पड़ा. These are the somatic characters, sex linked characters. So suppose this is a female XX, okay, and this female is receiving her X chromosome from her father, okay, and suppose the father is suffering from the color blindness. So if the father is suffering from the color blindness, obviously यही X gene यहाँ पे आएगा और यही यहाँ पे express होगा, है ना. तो अब देखिए, फादर इज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, सो ये कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन जो है ये इसमें एक्सप्रेस हो गया. ठीक है, ये तो वाई क्रोमोसोम है ना. सो बेसिकली तो इसका काम ही नहीं है ना, वाई क्रोमोसोम में यहाँ पे हम लोग का कलर ब्लाइंडनेस का जीन है ही नहीं. तो जो भी जीन यहाँ से ट्रांसफर होगा वो एक्स क्रोमोसोम, एक्स जीन ट्रांसफर होगा, मतलब एक्स क्रोमोसोम ही ट्रांसफर होगा फीमेल बनने के लिए. वाई तो ट्रांसफर होने वाला है नहीं. तो एक्स जो ट्रांसफर हुआ उसमें कलर ब्लाइंडनेस का जीन था, सो कलर ब्लाइंडनेस गॉट ट्रांसमिटेड टू द फीमेल. लेकिन यहाँ पे देखिए मदर भी एक एक्स क्रोमोसोम दे रही है. सो द टू एक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन फीमेल. वी नो दैट द कलर ब्लाइंडनेस जीन, इट इज़ द रिसेसिव वन, एंड नॉन रिसेसिव वन इज द, इट मीन्स द डोमिनेंट वन इज द नॉन कलर ब्लाइंडनेस जीन. तो ये नॉन कलर ब्लाइंडनेस जो जीन है ये इसके ऊपर डोमिनेंट है. तो दिस फीमेल विल नॉट एक्सप्रेस द कलर ब्लाइंडनेस, बट इट विल कैरी इट टू द फर्दर जनरेशन. मतलब यही अब अगर और क्रॉसेस करती है, अगेन इट क्रॉसेस विथ सम मेल, एंड देन अ मेल इज फॉर्म्ड. ओके, द मेल इज फॉर्म्ड. सो अगेन हम लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, तो नए पेज में करते हैं, वापस शुरू से देखिए. Suppose this is a father, this is a mother, okay, and the father is carrying a gene for the color blindness. So it transmits its X chromosome, mother transmits its X chromosome. So जब ये मिलते हैं XCX, so this is a female, this is the male father, and this is the female. Now this female will not express the X chromosome, but it is a carrier of the X chromosome. क्योंकि see, when it will further mate, this will further mate with another male, and suppose a male is formed now. Now see, not female. Suppose a male is formed now, so it will give its Y chromosome and it will give its XC chromosome. Okay. So when a male is formed, X, C and Y, you can see male में जो है अब ये एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि Y तो एज ए सेड यहाँ पे कि अगर एक भी जीन प्रेजेंट होगा, मतलब एक्स क्रोमोसोम पे अगर एक भी जीन होगा कलर ब्लाइंडनेस का मेल में, तो इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ. सो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि एक मेल जो है अपने, दिस फादर इज ट्रांसमिटिंग इट टू इट्स ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर नहीं, ग्रैंड सन को ये अपना, एक मेल फादर अपने मेल ग्रैंड सन को ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ट्रांसफ़र कर रहा है एक फीमेल के ज़रिए, लेकिन फीमेल एक्सप्रेस नहीं करते. इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. ओके, इतना इलेबोरेट करके समझाने का मतलब यही है कि कोई भी मेल अगर अपने ग्रैंडसन को वही इनहेरिटेंस ट्रांसफ़र करता है वाया इट्स फीमेल डॉटर, वाया इट्स डॉटर, it is known as criss cross inheritance. Now see why it will not be in female. अगर यहाँ पे मेल की जगह फीमेल बनता तो क्या होता है, देखिए एक्स सी एंड एक्स, यही चीज़ अगर फीमेल बन जाता तो एक्स एंड एक्स सी, सो दिस वुड बी द कंडीशन. अब इस कंडीशन में वापस वही वाला कंडीशन आ गया कि एक में प्रेजेंट है एक में प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक्सप्रेस नहीं करेगा. सो इसीलिए कोई भी मेल अपने मेल ग्रैंडसन को ही सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ट्रांसमिट कर सकता है, अपने ग्रैंड डॉटर को नहीं, सिर्फ ग्रैंडसन को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं. और वही चीज़ हम लोग अगर फीमेल के केस में लेते हैं, सपोज़ ये मेल की जगह यहाँ पे फीमेल होती तो फीमेल जो है अपने ग्रैंड डॉटर को ही ट्रांसमिट कर सकती है वाया हर मेल सन, नॉट फीमेल है मेल सन, इसका वाइस वर्सा. सो बेसिकली व्हेन वी सी
if there is a carrier, suppose this is a mother, okay, father से शुरू करते हैं. If this is a father, so it will transmit it to its grandson via her daughter, है ना. लेकिन अगर मदर होती तो मदर would transmit it to her granddaughter via her son. So this type of inheritance is known as crisscross inheritance. So basically when we define the crisscross inheritance, this definition is asked many times. Pretty simple definition: a type of sex linked inheritance. This is a sex linked inheritance, isn't it? So, a type of sex linked inheritance where a parent, it transmits its traits or characters to its grandson or granddaughter via her son or daughter. अब ये और लगा कि कंफ्यूजिंग हो तो हम लोग एक और अच्छा मतलब नॉन कंफ्यूजिंग डेफिनेशन एक बताते हैं. See, it is a type of sex-linked inheritance in which a parent transmits its trait to its grandchild, okay, grandchild of the same sex. Remember, of the same sex, via her offspring of the opposite sex. So this was the crisscross inheritance, a type of sex-linked inheritance where a parent transmits its traits to its grandchild of the same sex via its offsprings of the opposite sex. So why we are dealing about the sex-linked crisscross inheritance so much? Because अब जो क्वेश्चन आने वाला है एग्जामिनेशन में, द ड्रोसोफिला, उसका जो पूछेगा रेड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस लिंक्ड विद द ड्रोसोफिला, दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. वो जो होता है जो हम लोग अभी क्रिस क्रॉसेस पढ़ने वाले, वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को डिफाइन करता है. सो वी आर जस्ट seeing what actually a crisscross inheritance is. Now first of all, this was observed by Morgan. Now ये नाम याद रखिएगा, T.H. Morgan in 1910. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम्स, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसने ये डिफ़ाइन किया था फर्स्ट ऑफ ऑल. सो मॉर्गन ने किया था ड्रोसोफिला में. सो वी आर गोइंग ऑन फॉर दैट नाउ. सो अब यहाँ से मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ वही चीज़ एग्जामिनेशन में भी लिखना है. सो द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्लेन द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन द ड्रोसोफिला, नॉट ओनली इन द ड्रोसोफिला, कोई भी टाइप का सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जो फर्स्ट पर्सन था जो डिफाइन किया था, एज आई सेड यू, ही वाज द अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन, ओके, इन 1910. So Thomas Hunt Morgan पहली बार he studied the sex linked inheritance, but in what he studied it in Drosophila और fruit fly. एक्चुअली फ्रूट फ्लाई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, हमेशा मॉर्गन के साथ फ्रूट फ्लाई आता ही. सो फ्रूट फ्लाई एक्चुअली साइंटिफिक वर्ड में वी कॉल इट ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर. ये नाम तो याद कर ही लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर. Okay, the fruit fly, as in humans, it also has XX chromosomes in female and XY chromosomes in male. पर actually हुआ क्या, while working with his experiment on Drosophila, ये क्या फाइंड आउट किया कि देयर वाज सडन अपीयरेंस ऑफ वाइट आइड मेल. नो एक्चुअली क्या होता है कि ड्रोसोफिला में दो टाइप का कलर होता है, आई का कलर, ओके, आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला, देयर आर टू टाइप्स, रेड एंड वाइट. सो रेड जो है वो डोमिनेंट होता है एंड वाइट होता है रिसेसिव. जब ये मॉर्गन ही वॉज वर्किंग विद द कल्चर ऑफ रेड आइड ड्रोसोफिला, ही वॉज जस्ट वर्किंग विद द रेड आइड ड्रोसोफिला, ही फाउंड दैट देर वॉज सडन अपीयरेंस ऑफ द वाइट आइड ड्रोसोफिला इन द ऑफ स्प्रिंग्स. मतलब कि ये जब क्रॉसेस करवा रहा था रेड आइड ड्रोसोफिला का, ही फाउंड दैट वाइट आइड ड्रोसोफिला भी ये रेड आई के कल्चर में कहीं से आ गया. तो ही वॉज लाइक कन्फ्यूज्ड, ये वाइट आइड कहाँ से आ गया रेड आइड में. सो ही स्टडीड in detail about it by performing various crosses on it and mating the red eyed with the white eyed and so on, just to know what has actually happened. So हम लोग उसी क्रॉस के बारे में पढ़ने वाले. So after giving this short information, 5-6 lines in information, then we'll go for the types of crosses. So he conducted 3 types of crosses. ये याद करना पड़ेगा कौन से टाइप्स के क्रॉसेस इसने करवाए थे. So पहला क्रॉस what he did a red-eyed female into white-eyed male. ओके, सो पहला क्रॉस क्या किया इसने, रेड आइड यानी कि डोमिनेंट जो भी है नॉर्मल फीमेल का, इसने वाइट आइड मेल के साथ क्रॉस करवाया. वी विल रीड अबाउट इन डिटेल. पर यहाँ पे क्रॉस 2
व्हाट इट डिड वाज, इसका जो भी F1 जनरेशन आया, यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन ऑफ दिस क्रॉस, ही डिड, हम लोग जब ये करेंगे हम लोग को मिलेगा कि सब F1 जनरेशन में जितने भी है वो सारे के सारे फीमेल्स रेड आइड होंगे. विल लर्न अबाउट इट. पर यहाँ पे जस्ट आई एम शोइंग यू द ग्लैंस. सो F1 जनरेशन के जितने भी रेड आइड फीमेल थे, यानी कि यहाँ पे हाइब्रिड फीमेल की बात हम लोग कर रहे हैं. सो जितने भी फीमेल थे, ही क्रॉस्ड इट विथ अगेन वाइट आइड मेल. Okay, and cross 3 was the reciprocal cross. As I said, reciprocal cross means parents का sex change करते. So it was the cross between white eyed female, इसका reciprocal cross है ये, into red eyed male. As I said you कि reciprocal cross में जो है ये मैटर नहीं करता है कि कौन सा सेक्स हो, वो सब मैटर नहीं करता है. मैंने पहले वीडियो में बताया था कि रेसिप्रोकल क्रॉस में कुछ मैटर नहीं करते कौन सा सेक्स से कौन सा आ रहा है क्रोमोसोम. लाइक यहाँ पे रेड आइड फीमेल रेड आइड फीमेल एंड वाइट आइड मेल है, पर यहाँ पे वाइट आइड फीमेल एंड रेड आइड मेल है, ये मैटर नहीं करता नॉर्मल कंडीशन में. पर यहाँ पे एज ए सेड यू इन द फर्स्ट वीडियो कि वहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है और वो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली वो एक्सेप्शन क्यों है और कैसे है. So first of all, we are going for the first cross. While writing in the examination also, we will write in the similar way. We'll list the crosses first and then we'll go for the cross. So first cross क्या था? Red eyed female and white eyed male. So समझने के लिए हम लोग क्रॉस करते जाएंगे and description तो उसके हिसाब से हम लोग लिख ही सकते हैं. So when Morgan conducted his experiment between red-eyed female and white-eyed male, these were the homozygous one, मतलब प्योर वाले थे, ठीक है. So if we see the red-eyed female and the white-eyed male, पहले हम लोग एक समराइजिंगली बस कर देते हैं. एक आई विल शो यू समथिंग विदाउट राइटिंग द XY क्रोमोसोम्स एंड ऑल. मतलब XY क्रोमोसोम्स को मैं पहले नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली बता दूंगा कि मॉर्गन जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो हुआ क्या एक्चुअली, एंड देन आई विल टेल यू अबाउट द X and Y क्रोमोसोम्स इन दिस, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट हैपेंड इज दैट जब मॉर्गन ने रेड आइड फीमेल और वाइट आइड मेल का क्रॉस किया, सो ही फाउंड इन F1 जनरेशन जितने भी थे सारे के सारे रेड आइड थे. ओके, मेल फीमेल जो भी फॉर्म है वो मैं बाद में बताता हूँ. तो जितने भी थे रेड आइड हुए, ठीक है, रेड आइड मेल रेड आइड फीमेल सारे. सो दिस वाज द F1 जनरेशन. एंड जब ये मॉर्गन ने इसका सेल्फिंग किया, मतलब रेड आइड फीमेल का, इसमें मेल और फीमेल दोनों है. सो रेड आइड फीमेल का सेल्फिंग किया रेड आइड मेल के साथ. नाउ सी वन थिंग, सेल्फिंग इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रदर सिस्टर मेटिंग, बिकॉज ये एक ही जनरेशन के हम लोग एक मेल और एक फीमेल को हम लोग वो मेट कर रहे हैं. सो इट इज़ नोन एज सेल्फिंग ब्रदर सिस्टर मेटिंग. सो जब ये मेटिंग हुआ तो मॉर्गन व्हाट ही फाउंड दैट ऑल द फीमेल्स, जितने भी फीमेल थे वो सारे के सारे रेड आइड थे, ठीक है. ऑल द फीमेल्स वर रेड आइड, बट देर वॉज अ शॉकिंग रिजल्ट दैट देर वर 2 टाइप्स ऑफ मेल्स फॉर्म्ड. एक रेड आइड मेल फॉर्म हुआ विच वॉज नॉर्मल, बट फिर अगेन यहाँ पे वाइट आइड जो मेल था वो रीअपेयर हो गया. मतलब जो वाइट आइड मेल यहाँ पे था F1 जनरेशन में, सॉरी पेरेंट में, वो F1 जनरेशन में कहीं पे भी नहीं आया वाइट आइड मेल, लेकिन ये जो F2 जनरेशन में ये रीअपेयर हो गया. अब इसको ईजिली समझने के लिए वी आर गोइंग ऑन फॉर व्हाट यू नीड टू डू इन द एग्जामिनेशन एग्जैक्टली. मतलब क्रोमोसोम्स लिखना पड़ेगा यहाँ पे XY एंड ऑल, और उससे ईजी भी होगा समझने के लिए, एंड डिस्क्रिप्शन के लिए भी उसके लिए ईजी होगा. ये तो बस समझाने के लिए था. अब सी करना क्या है, सबसे पहले रेड आइड फिनोटाइप तो लिखना ही पड़ेगा. सो व्हाट यू डिड, रेड आइड फीमेल वाज देयर एंड ही क्रॉस्ड विथ द वाइट आइड मेल. सो अब जीन्स देखिए सबसे पहले, दीज आर प्योर जीन्स होमोजाइगस. सो ऑब्वियसली XX जो है यहाँ पे प्योर जीन्स है. रेड आइड फीमेल यानी कि प्योर जीन्स में दोनों में ही होमोलोगस होगा. सो होमोलोगस के लिए X, ये CC जो है हम लोग यहाँ पे जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस में कर रहे थे, यहाँ पे CC नहीं करेंगे. ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस में CC था तो वो सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस के लिए C यूज़ करे थे. यहाँ पे हम लोग आई कलर का बात करते, ये हम लोग यूज़ नहीं करेंगे. सो कन्फ्यूज़ मत होइए कि यूज़ नहीं करना है. यहाँ पे हम लोग करना है वो है XX क्रोमोसोम्स तो रहेगा ही, पर रेड के लिए हम लोग R लिखेंगे, ठीक है. सो सी एज ए सेड यू इट इज़ द होमोलोगस क्रोमोसोम.
इट मीन्स कि ये एक प्योर ट्रेट है, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स पे रेड होगा, प्योर ब्रीडिंग ट्रेट है. सो ही क्रॉस्ड इट विथ द वाइट आइड मेल. अब देखिए मेल के लिए एक्स वाई रहेगा, सिंपल है. अब ये अगर वाइट आइड है तो वाइट आइड के लिए एक्स क्रोमोसोम पे डब्ल्यू का होना ज़रूरी है, विच इज़ द वाइट कलर का जीन. ये आर जो है रेड कलर का जीन है, डब्ल्यू है वाइट कलर का जीन, ठीक है. और वाई पे तो जीन्स होगा ही नहीं, क्योंकि ये वाइट कलर का जो जीन है और रेड कलर का जो भी जीन्स है ये सब है सोमैटिक जीन्स, यानी कि सेक्स लिंक्ड जीन्स, जो कि वाई पे नहीं रहेंगे. अब डोंट गेट कंफ्यूज, सेक्स लिंक्ड जीन्स मतलब सेक्स कैरेक्टर्स नहीं होते. सेक्स जीन्स और सेक्स लिंक्ड जीन्स डिफरेंट चीज़ होते हैं. सेक्स जीन्स आर डिफरेंट एंड सेक्स लिंक्ड मतलब जो जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स पे है पर सेक्सुअल जीन्स नहीं है, ठीक है. आई टोल्ड यू बिफोर सोमैटिक जीन्स है. सो अब क्या हुआ जब इसका क्रॉस हुआ, सो वी आर सीइंग सबसे पहले तो गैमेट्स फॉर्म करना ज़रूरी है. तो गैमेट्स जब भी फॉर्म होगा वी नो वन गैमेट विल बी दिस एंड वन गैमेट विल बी दिस. गैमेट्स में दोनों ही एलिल्स चले जाएंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स. सो यहाँ पे भी गैमेट्स फॉर्म हुआ है. अब क्रॉस करना है, ठीक है. आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप वो चार्ट वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली एक पनेट स्क्वायर बना सकते हैं. आई विल सजेस्ट पनेट स्क्वायर, क्योंकि पनेट स्क्वायर में कन्फ्यूज़न नहीं होता और क्लियर रहता है और गलती की कोई भी वहाँ पे चांसेस नहीं रहती है. फिर भी यहाँ पे दिखाने के लिए मैं चार्ट भी दिखा दूंगा, पनेट स्क्वायर भी दिखा दूंगा. सो सी दिस विल कंबाइन विद दिस एंड दिस, ओके. चार्ट भी वैसे इजी है, एक्स आर एक्स डब्ल्यू देन एक्स आर वाई, वी हैव एक्स आर एक्स डब्ल्यू. बेसिकली दोनों तो सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों सेम जीन्स है, एक्स आर वाई. सो कहीं कहीं पे इतना क्रॉस नहीं दिखा कि सिंपल सिर्फ दो क्रॉस दिखा दिया, ये क्रॉस इसके साथ ये क्रॉस इसके साथ, लेकिन हम लोग चारों दिखाएंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो. सो सी एक्स आर एक्स डब्ल्यू. नाउ एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल है, रेड वाइट दोनों ही प्रेजेंट है. जब रेड वाइट दोनों ही प्रेजेंट है तो डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करेगा, रेड एक्सप्रेस करेगा. पर होना तो ये हाइब्रिड ही है ना, क्योंकि रेड और वाइट तो दोनों ही है. सो दिस इज हाइब्रिड रेड आइड female, okay. This is male, red eyed male, क्योंकि सिर्फ R is there. So this is red eyed male. वही चीज़ यहाँ पे, this is hybrid red eyed female and this is red eyed male. So basically what we found is all the F1 generation are red eyed. Hybrid हो, female हो, male हो, these all are red eyed. अब it is due to the fact that red is dominant over white. So जहाँ पे भी white present भी हुआ, कहीं पे भी अगर white आया भी तो red जो था उसके ऊपर dominant था. So इसीलिए red eyed was expressing itself. So this was the F1 generation. अब further क्या किया मेंडल ने, सॉरी मॉर्गन ने, ही सेल्फ द F1 जनरेशन, मतलब एक मेल और एक फीमेल को सेल्फ किया. अब मेटिंग के लिए तो मेल फीमेल होना ज़रूरी है. सो एक्स एक्स एंड एक्स वाई, पर ही वॉज डूइंग फ्रॉम द F1 जनरेशन. सो F1 जनरेशन किस टाइप के फीमेल है, आर और डब्ल्यू, मतलब हाइब्रिड फीमेल्स है, ओके. रेड आइड बट हाइब्रिड, सो आर डब्ल्यू इज देयर, आर एंड डब्ल्यू. एंड मेल्स किस टाइप के है, रेड आइड मेल्स है, आर. सो दिस वॉज done and gametes again will be formed, okay. You can even make a Punnett square if you want. So Punnett square के लिए तो easy है, बस एक बॉक्स बना दीजिए, कुछ इस टाइप का लगेगा Punnett square if you are making the Punnett square, okay. Here plus is representing the R, so इस टाइप का आएगा Punnett square, पर मैं आपको क्रॉस करके भी दिखा देता हूँ. So this will cross will this, again this. सो जब ये क्रॉस करे एक्स आर से एंड देन एक्स आर वाई, अगेन एक्स आर एक्स डब्ल्यू एंड देन एक्स डब्ल्यू वाई. सो नाउ वी आर सीइंग दिस इज द F2 जनरेशन. सो F2 जनरेशन में दिस इज फीमेल, प्योर रेड आइड फीमेल. सो दिस इज रेड आइड फीमेल. नाउ वी आर सीइंग मेल इज देयर, रेड आइड मेल. अगेन वी आर सीइंग फीमेल, बट दिस इज अगेन रेड आइड, भले हाइब्रिड है लेकिन है तो रेड आइड, आर इज डोमिनेंट. एंड नाउ यू आर सीइंग द अनदर वन, वाइट आइड male is there, W is there, white eyed male. So basically this was found in his first cross. So first cross का summarization again, जब
he crossed red-eyed female and the white-eyed male. All the F1 generation were found to be red-eyed. But when he selfed the F1 generation, he found that in F2 generation even the white-eyed male appeared. So इसका अगर हम लोग को description लिखना पड़ेगा, so सबसे पहले the description में we have to write that the pure homozygous red-eyed female was crossed with the white-eyed male, and in F1 generation all were red-eyed. It is because of the fact that the red color it is dominant over the white color. But when he interbreeded, self-breeded the F1 generation, he found that in F2 generation, so F2 generation का हम लोग conclusion लिखेंगे, he found in the F2 generation all the females of F2 generation were रेड. हम लोग देख रहे हैं सारे के सारे फीमेल रेड थे. नाउ ही फाउंड दैट हाफ ऑफ द मेल्स इन F2 जनरेशन वेर रेड. आधा रेड है और आधा वाइट है. सो हाफ ऑफ द मेल्स ऑफ F2 वेर वाइट. अब बेसिकली रेशियो अगर देखेंगे तो मेंडेलियन रेशियो से मैच करेगा 3:1 से. सो रेशियो ऑफ रेड इज टू वाइट, dominant is to recessive was 3:1 because see red and one white. So 3:1 मेंडेलियन रेशियो से मैच किया डोमिनेंट और रिसेसिव के रेशियो से, जैसे कि मेंडल ने बोला था F2 में रहेगा. सो 3:1 अभी भी मैच किया. सो दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट क्रॉस. और बेसिकली ये समझाने में सिर्फ बहुत ही लंबा था, लिखने में तो बस ये बहुत कम होगा, 5-6 लाइन से ज़्यादा होना नहीं चाहिए. और फिर उसके बाद ये सिर्फ आपको क्रॉस दिखा देना है. आप क्रॉस ऐसे भी दिखा सकते हैं, पनेट स्क्वायर से भी दिखा सकते हैं, इट्स योर विश. सो दिस वाज द फर्स्ट क्रॉस. अब इसका कंक्लूजन जो हम लोग दोनों क्रॉसेस मतलब तीनों क्रॉसेस के लास्ट में लिखेंगे, इसका कंक्लूजन क्या है एक्चुअली, क्यों ऐसा क्रॉस किया गया और इससे क्या पता चला मेंडल को, सॉरी मॉर्गन को. सो ये तो फर्स्ट क्रॉस था. अब दूसरा क्रॉस में मॉर्गन ने किया क्या एक्चुअली. सो अभी तक जो इतना लंबा था डिस्क्रिप्शन अबाउट द फर्स्ट क्रॉस, ओनली इट वाज अबाउट द फर्स्ट क्रॉस. अब दोनों जो क्रॉसेज है वो बहुत ही सिंपल है, उतना बड़ा उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है. सो दूसरा क्रॉस जैसा कि बोला, इट वाज अबाउट द रेड आइड फीमेल विच वॉज फ्रॉम द F1 जनरेशन. मतलब F1 जनरेशन का जो रेड आइड फीमेल आया था, सो ये जो F1 जनरेशन में उसको मिला रेड आइड फीमेल, ही क्रॉस्ड इट विद द वाइट आइड मेल. नाउ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड देयर. यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्रॉस 1 में जो हाइब्रिड रेड आइड फीमेल था उसको मॉर्गन ने वापस क्रॉस किया था, पर वापस क्रॉस किया था F1 की ही रेड आइड मेल के साथ. मतलब कि जो रेड आइड फीमेल थी F1 की, उसको क्रॉस किया गया था F1 का रेड आइड मेल के साथ. और यहाँ पे F1 की रेड आइड फीमेल को क्रॉस किया है वाइट आइड मेल के साथ, नॉट विद रेड आइड. सो दे आर डिफरेंट, यू कैन गेट कन्फ्यूज्ड. सो आई एम सेइंग कि जो क्रॉस 1 में था F1 की रेड आइड फीमेल को, इट वॉज विद द रेड आइड मेल. बट इन क्रॉस 2 व्हाट इज हैपनिंग, द F1 की रेड आइड फीमेल इट इज क्रॉस टू द वाइट आइड मेल. So as we know, red-eyed female, which is the F1 generation. F1 generation मतलब hybrid थी. So now this is female. Since it is hybrid, both the genes will be present R and W. Okay. Now white-eyed male means XY is there and white के लिए W gene होना जरूरी है. R तो होगा ही नहीं क्योंकि Y chromosome पे तो कुछ होता ही नहीं है. So now again the gametes will be formed. Again you can make a Punnett square or this. It's your wish. So see, XR-XW will be the first one, XR-Y will be the second one, this is Y, and then XW-XW the third one, and XW-Y will be the fourth one. हाँ, so see we are seeing the results to be like this. Results में क्या है कि there was a female which was red-eyed. R और W दोनों है, लेकिन dominant कौन सा है, R. So this is our red-eyed female. Then we have another one, this is the male which is the red-eyed male. Then we have another female, so this is white-eyed female. And then we have again a male which is the white-eyed male. So now you can see here कि इस generation, इस cross में all the types of characters are present there. मतलब red eyed female is also there, red eyed male is also there, white eyed female is also there, white eyed male is also there. So first we'll show this cross and then we'll write about the conclusion. मतलब अब crosses के बारे में you can write that he crossed the red eyed female with white eyed male, then the gametes were formed and these generation were formed, and
in F1 generation we found, इसका F1 generation में found the conclusion to be, अब देखिए, अब देख सकते हैं half of them are red-eyed, half of them are white-eyed, but basically they are male female. So out of 4, 1 out of 4 is red-eyed female, 1 out of 4 is white-eyed female. Again 1 out of 4 is red-eyed male, 1 out of 4 is white-eyed male, 1 out of 4 all, मतलब चारों में से सब एक एक प्रेजेंट है, ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द क्रॉस टू. सिंपल, इजी. व्हेन वी डू द क्रॉसेस वी कम टू नो व्हाट इज द result, and on the basis of the result we write the conclusion. That's all. It's very simple. And then we have the cross 3. As I said, now cross 3 was the reciprocal cross of the cross 1. मतलब कि मेल और फीमेल को बदल दिया गया. It was the red eyed versus the white eyed. But अब देखिए F1 में हम we took the red eyed female, here we will take the red eyed male. In the F1 generation we took the white eyed male, here we will take the white eyed female. It is the reciprocal of the F1 generation. Okay, so again we will write the chromosomes. Male XY, red eyed means R will be there. Again female XX, white eyed means दोनों white होना पड़ा, क्योंकि white it is a, we know that white is a recessive gene, और recessive को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए दोनों में ही प्रेजेंट होना पड़ा. अगर यहाँ पे R प्रेजेंट होता है तो फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अपने आप को, बिकॉज इट विल बी द रिसेसिव वन. इट इज़ द रिसेसिव वन. रिसेसिव को एक्सप्रेस करने के लिए होमोजाइगस कंडीशन ही चाहिए. सो जीन्स नाउ दे विल फॉर्म द gametes. Now when we form the gametes, again we have the crosses, similar cross as of cross 1. We found XR XW and then XWY, sorry, XR XW XR XW, same, XWY XWY. So here we are finding red eyed फीमेल है ना, रेड आइड फीमेल, अगेन वाइट मेल, वाइट मेल. सो दिस इज द रिजल्ट. नाउ अब यहाँ पे रिजल्ट में आप कंट्रोवर्सी देखिए. F1 जनरेशन में व्हेन वी क्रॉस्ड, सॉरी इन क्रॉस 1 व्हेन वी डिड, इन F1 जनरेशन वी फाउंड कि रेड आइड फीमेल वॉज देयर, ओके, red eyed male was there, okay, red eyed female was there, okay, and red eyed male was there. मतलब कि सारे के सारे यहाँ पे रेड आइड थे. देयर वॉज नो वाइट आई इन द क्रॉस 1. बट वही चीज़ अगर हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस किया जाए तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 2 रेड आइड आते हैं और 2 वाइट आइड आते हैं. बेसिकली रेसिप्रोकल क्रॉस में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे तो डिफरेंस आ रहा है. इन द फर्स्ट क्रॉस वी सॉ इन F1 जनरेशन ऑल वर रेड, बट इन दिस वी आर सीइंग there are red and there are white as well. So this is the exception of the reciprocal cross. Okay, so with this we complete the sex linked inheritance. मतलब जो लिखना होता है एग्जामिनेशन वो कंप्लीट करते हैं. अब अगेन आई विल समराइजिंगली टेल यू एंड देन आई विल टेल यू द कंक्लूजन. किया गया सबसे पहले व्हेन वी आर आस्क्ड टू राइट अबाउट द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, वी विल राइट अबाउट द Drosophila. It means the we'll write that Drosophila has 2 types of colors of the eyes, red and white, and Morgan conducted his crosses between 3 types of crosses. These are the 3 types of crosses. So cross 1 will show the cross, okay, and F1 generation will be further crossed, and this will be the F2 generation. Cross 1 का F2 तक दिखाना है, cross 2 और 3 का सिर्फ F1 तक दिखाना है. ओके, सो क्रॉस 1 का जो है F2 तक दिखाया गया है. ओके, एंड देन विल राइट द कंक्लूजन. जस्ट इट इज़ कि कितना रेड है, कितना वाइट है, कितना मेल है, कितना फीमेल है, वही तो कंक्लूजन है ना. और क्रॉस 2 का भी वही चीज़. वी शुड रिमेंबर व्हाट टाइप ऑफ क्रॉस इज दिस. अब वो तो आपके ऊपर है कैसे आप याद करते हो उसको, ठीक है. सो सी नाउ क्रॉस इज डन, जस्ट द कंक्लूजन कितना क्या है, कितना क्या है. एंड देन क्रॉस 3 भी वही चीज़ है. अब फाइनली तो कंक्लूजन तो लिखना पड़ेगा ना. इन सब क्रॉसेस का फ़ायदा क्या हुआ मॉर्गन को. नाउ एज आई सेड यू अर्लियर कि ये सब क्रॉसेस का फ़ायदा था, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का प्रूफ निकला, ठीक है. सो व्हेन वी आर राइटिंग द कंक्लूजन वी हैव टू राइट इट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट. इट वाज क्लियर दैट द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस वाज प्रूव्ड. अब कैसे प्रूव है वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार. सी द क्रॉस 1. जब वी आर सीइंग द क्रॉस 1, सो
See, there was a white-eyed male. No, first of all, we'll remember what is crisscross inheritance. I said you crisscross inheritance. It is a type of inheritance in which, suppose there is a father, then it will inherit its character to its grandson via her daughter, है ना? We are taking the case of father. So see here, हम वापस से ये बना देते हैं ताकि confusion ना हो. So see, जब वापस से ये बनाया गया, so see from starting there was a female red-eyed and there was a male of white-eyed. This was the cross one का पहला case. ठीक है? So when we did the cross, we found that there were two, this case and two this case. वही चीज़ हम लोग यहाँ पे summarize करके लिख रहे हैं. The thing we had made, see red-eyed and white-eyed. So red-eyed and white-eyed, and then two red-eyed females, two red-eyed females and two red-eyed males, two red-eyed males. वही चीज़ हम लोग यहाँ पे बनाए हैं. तो यहाँ पे आप देखिए, अब जब इन दोनों का सेल्फ क्रॉसिंग किया गया तो फर्दर जनरेशन में वी फाउंड एक्स आर एक्स डब्ल्यू एक्स आर वाई एंड एक्स डब्ल्यू वाई. वही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखे कि वो F1 जनरेशन को अगर सेल्फिंग किया गया तो क्या मिला. So when we did the selfing of the F1 generation, we found these things: red-eyed female, then red-eyed male, red-eyed female, and then white-eyed male. So वही चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं, red-eyed female, red-eyed male, and then red-eyed male, sorry, female, red-eyed male, and then white-eyed male. So this is just a summarization of that. So what I'm trying to tell you is that यहाँ पे देखिए क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को कैसे वो प्रूव करते हैं. There is a white color in the father. This is the father, okay? White color यहाँ पे है, ठीक है? This white color we are taking. The father is there. वो चीज़ he transmitted to its daughter. This is her daughter, है ना? अब डॉटर में ही ट्रांसमिटेड, बट डॉटर वॉज अनेबल टू एक्सप्रेस इट बिकॉज रेड वॉज प्रेजेंट. सो डॉटर विच इज जस्ट द कैरियर ऑफ द जीन. So daughter, she is just the carrier of the gene. She is not the expressor of the gene. She is not the sufferer of the gene. She is the carrier of the gene. So father, he transmitted to the daughter, but she was just the carrier. And again the daughter, he transmitted to its son. In son again it was expressed. Here it is expressed. He is the sufferer. So now here see, father का जो जीन था वो grandson में चला गया through her daughter. So this is the crisscross inheritance. In this way the sex linked inheritance, the crisscross inheritance, it was proved by the crosses of the Morgan. So this is the conclusion of the 3 crosses of the Morgan, कि the male transmits its X chromosome to their daughter only. It means the male transmits its X chromosome to its daughter only, not its son. अगर ये अपने son को ट्रांसफ़र किया होता, अगर ये फादर अपना एक्स क्रोमोसोम सन को ट्रांसफ़र किया होता तो सन में आ जाता ना वो चीज़. सन वुड ऑल्सो कैरी ना, बट द डॉटर इज ओनली कैरिंग. सो इट्स प्रूव्ड दैट द फादर ऑलवेज गिव्स द एक्स क्रोमोसोम टू हर डॉटर एंड देन द डॉटर गिव्स इट to her son. It means the crisscross inheritance is proved. So in this way we complete the thing we need to write in the examination. So once again आपको करना क्या है, एक्चुअली बस करना इतना है कि तीनों टाइप का क्रॉसेस आपको याद रखना है कि किस टाइप का क्रॉस किया गया था. बाकी ये देखने में बस कन्फ्यूजिंग है. व्हेन यूर कंडक्टिंग द क्रॉसेस यू विल सी दीज थिंग्स, और इनको देख के आप पता लगा सकते हैं कि किस टाइप का वो कैरेक्टर है. और आखिर कंक्लूजन में तो वही कैरेक्टर लिखना है ना, कौन सा कैरेक्टर कितना प्रेजेंट है. अगेन इन क्रॉस 2 वी आर सीइंग the same thing, which type of cross is there, and then if you make it you can understand by seeing this. ये सिर्फ देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, वरना ये समझने में तो कुछ भी नहीं. 2 X are there, so it is female, and R and W is there, so R is dominant, so red eyed female. So it is very easy to understand. Okay, so that's all about writing about the sex linked inheritance, and this question is asked 9 times. Okay, and it is one of the most important questions, almost certain to be asked. 1-2 पेज से ज़्यादा ये होगा नहीं, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है. इट विल बी आस्क्ड लाइक डिस्क्राइब द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड डिस्कस इट इन रेफरेंस विद द आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर. ओके, basically this question was asked in 61, 62, 68, 70, 72, 74 and उससे पहले भी 57, ऐसे कुछ 9 टाइम्स पूछा गया था. So
अब इसके आगे विल फाइंड दैट इन द चैप्टर यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट बुक that there are the color blindness things, the hemophilia things, but that is not our concern, that is not in our syllabus, that is just for extra information. And basic knowledge about the color blindness I gave you earlier in the video. You can rewind the video. So that's all for today, and that's all about the sex linked inheritance we need to know from the course of examination. So wait till the next video. Till then, take care. Goodbye.